the respected principal and the teachers of our ASBM. Today we have gathered here to do the in-house training. The concept of the in-house training today is methods of teaching mathematics, and the resource person is Mr. Prakash Mathur. Today we have gathered here to learn about the concept of the maths. Mathematics is an area of a knowledge that includes the topic of numbers, formulas, shapes, and related structures. So now I am going to invite the resource person, Mr. Prakash Mathur, to further proceed the in-house training, and hope you all will enjoy the session. Thank you. Thank you. Thank you. Now, sir. Now, at first, good morning to all of you. Myself, Prakash Mathur. I am the resource person of today's training. The topic of today's training is method of teaching mathematics. Through this training, I want to increase your teaching skill of maths and clear your concept about probability. Okay. So before starting the training, I request to all teachers give your intro one by one. Okay. So when recites. Myself, Asa Shodkar. Myself, Asa Shodkar. I am a TGT teacher of this institute. Good morning, all of you. Myself, Anjali Gupta. I am a PRT teacher of this institute. Thank you. Good morning, all of you. Myself, Tarika Varma. I am a PRT teacher of this institute. Thank you. Good morning, everyone. Myself, Tosha Das. I am a TGT teacher of this school. Thank you. Good morning, everyone. Myself, Anuradha Yadav. I am a TGT teacher here in this reputed organization. Thank you. Good morning, everyone. Myself, Vandana Rana, and I am a TGT teacher in this school. Myself, Lakshmi Gupta. I am a PRT teacher of this reputed school. Thank you. I am Krisha Mukherjee, TGT teacher in this school. Myself, Amshula Barat, and I am a TGT teacher in this school. Good morning, all of you. Myself, Janki Bag. I am working as a PRT teacher in this school. Good morning, everyone. My name is Shishma Mathur. I am a PRT teacher in this school. Good morning, everyone. Myself, Moshini Chatterjee. I am a PRT teacher of this school. Good morning, everyone. Myself, Indranya. I am a TGT teacher of this school. Good morning, everyone. My name is Devi Kumari, and I am PGT teacher in this school. Good morning, everyone. Myself, Bobby Kumari Sao, PGT Geography. I am working in this institute as a wellness teacher. Thank you. Good morning, all of you. Myself, Kiran Pandit. I am PGT teacher in this school. Myself, Prashmit Roy. I am a PGT teacher over here. I take accountancy and VST classes. Thank you. Good morning, all of you. My name is Chiranjeev Chakraborty. I am a PGT teacher in this school. Good morning. My name is Shiv Patra. I am librarian of this school. Thank you. Good morning, everyone. My name is Bhimal Chandra Gorai, and I am working in this school as a PGT teacher of mathematics. Thank you. I am Urubama Gorai, PGT teacher of this school. I am working about 10 years in this school. Myself, Paramatma Gori. I am a PRT teacher of this school. Myself, I am Ujjwal Lai, sport teacher of ASBM Kitunda. प्रभात सबको मैं भागीरथ पांडे स्नातक प्रशिक्षित संस्कृत शिक्षक and I am a STNC of this school, and today we have
gathered here to do the in-house training. Thank you. Now, and again, to all of you, how many math teacher are present here? So, earlier friends, math teacher. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Very good. That means here only 6 math teachers are present and the remaining teachers are other subjects. So, other subject teacher also enjoy the training. So, the first topic of my training is what is maths? Yeah. तो कैसे हम इन बच्चों को तो at first clear the concept. Math is a practice based subject. It is totally depend on knowledge, that is power of mind. Math क्या है? Math एक practice based subject है. ये fully depend करता है memory, power of memory of mind. So at first I clear the full form of maths. What is the full form of maths? First word of math is M. So M for memory. M for memory. Use the diagram. M for memory. जब तक बच्चे का माइंड का कैपेसिटी अगर नहीं रहेगा, जैसे आप मैथ्स करा रहे हैं, आप बहुत अच्छे टीचर हैं, अच्छा से मैथ करा रहे हैं, मगर बच्चे उसको लेने में असमर्थ हैं। Can't able to pick your procedure, your levels. तो बच्चे क्या करेंगे? मैथ्स सीखेंगे। तो ये जो मेमोरी है, ये बच्चे का मेमोरी कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं? कैसे हम बच्चे को मेमोरी को डेवलप कर सकते हैं और मैथ्स को अच्छा से सिखा सकते हैं? तो इसके लिए अपने यहाँ जो बायो का टीचर है, सीसी सर, सीसी सर, ओके, to say the structure of memory and how to increase the power of system. हम लोग देखते हैं तो हम लोग का जो ब्रेन है, ब्रेन का वेट होता है 1400, 1400 ग्राम। ये गर्ल्स और बॉयज़ में वैरी करता है। अगर ये गर्ल्स का है तो वो 1100 ग्राम का एवरेज 1100 ग्राम होता है, 1100। और अगर ये बॉयज़ का होता है तो 1600। ये जो ब्रेन है, ब्रेन और हम लोग का ये जो बैकबोन होता है, जस्ट बैकबोन का अंदर में स्पाइनल कॉर्ड रहता है। ये दोनों को एक साथ हम लोग कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब हम लोग का टोटल बॉडी को कंट्रोल करने का एबिलिटी जिसमें है, सेंट्रली जो है उसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो अदर फंक्शंस करता है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है और ये जो हम लोग का ब्रेन होता है, ये दोनों को लेके कहते हैं हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर हम लोग देखते हैं तो ब्रेन बनता है, ब्रेन या हम लोग का ये नर्वस सिस्टम तो नर्व सेल से बनता है। नर्व सेल क्या होता है? हम लोग का बॉडी में सबसे लंबा सेल, द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। ये नर्व सेल अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग का 100 बिलियन, हम लोग का ब्रेन में, सिर्फ ब्रेन में 100 बिलियन नर्व सेल्स रहता है। ये नर्व सेल जो होता है इसका पार्ट रहता है जो रिसीव करता है इंफॉर्मेशंस को, जो कलेक्ट करता है उसको कहते हैं हम लोग डेंड्रॉन। वो इंफॉर्मेशंस लेता है। अब इंफॉर्मेशंस हम लोग का 5 सेंस ऑर्गन हम लोग जानते हैं।
5 सेंस ऑर्गन में होता है, पहला होता है आंख, आई होता है, स्किन होता है, देन टंग होता है, देन ईयर होता है। तो हम लोग मीन्स टोटल 5 हम लोग और नोज होता है, 5 हम लोग सेंस ऑर्गन होता है। ये सेंस ऑर्गन रिसीव करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड, स्टिम्युली ये रिसीव करता है। ये जो रिसीव जो करता है वो है डेंड्रॉन। डेंड्रॉन इंफॉर्मेशन भेजता है, इस डेंड्राइट जो है इंफॉर्मेशन भेजता है सेल बॉडी को। हाँ, तो सेल बॉडी उसके बाद इंफॉर्मेशन जो है वो एक्शन को भेजता है। एक्शन लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। वो इंफॉर्मेशन अब एक ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट मेरा ब्रेन में चला गया, तो पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद वो भेजा जाता है। तो ये एक नर्व और एक नर्व के बीच में गैप रहता है, हाँ साइनस इसको कहा जाता है। और ये साइनस में एक फ्लूइड रहता है जिसमें इलेक्ट्रिक इंपल्स जाता है। ये होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये इंफॉर्मेशन आता है हम लोग ये जैसे बैकबोन है, ये बैकबोन का जस्ट अंदर में हम लोग रहता है स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड में इंफॉर्मेशन आता है। इसका स्पीड होता है पर सेकंड में 100 मीटर। मतलब अगर हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे अभी सर यहाँ लिखे हैं, हम देख रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन मेरा आंख से ऑप्टिक नर्व जो है वो पहले मेरा ब्रेन में नहीं भेजेगा, वो पहले मेरे स्पाइनल कॉर्ड में भेजेगा, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं टीवी में जब मतलब सिनेमा में क्या होता है, जब विलेन को मारता है तो हीरो ऐसे मुंडी घुमा देता है, दैट मीन्स उसका स्पाइनल कॉर्ड को ही तोड़ देता है। तो दैट मीन्स देयर इज अ ब्रेक डाउन एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू इंफॉर्मेशन कम टू द ब्रेन, सो टोटली स्टॉप। इसीलिए मतलब टीवी में दिखाता है कि या गर्दन में मार दिया तो वो बेहोश हो गया, या गर्दन में मार दिया तो उसका कोई भी पार्ट प्रॉब्लम हो गया। अब ये इसके बाद ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्शन हो गया, उसके ऊपर में जो आता है ये होता है उनका ब्रेन। ये ब्रेन जो होता है, ब्रेन का मेनली जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो होता है सेरिब्रम। और ये जितना भी चीज होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग रोते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, हम लोग का थिंकिंग पावर कुछ भी, हम लोग बोलते हैं कि मम्मी आज हमको मारा, मेरा मन खराब हो गया, तो मन हम लोग बोलते हैं हार्ट को सिंबल देते हैं कि हार्ट है। हार्ट कुछ नहीं है, हार्ट से ब्लड को फ्लो करता है, सब कुछ होता है माइंड से, वो सेरिब्रम से होता है। उसके बाद होता है सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम, अब ब्रेन को तो प्रोटेक्शन देना है, तो ब्रेन के ऊपर में हम लोग स्कल रहता है। अब स्कल के अंदर में हम लोग का जो ब्रेन होता है, ब्रेन का मीन्स मेनिंजेस बोल के लेयर होता है। अब ये मेनिंजेस जो लेयर होता है, ये मेनिंजेस लेयर का 3 गो पार्ट है। ये 3 गो पार्ट का नाम है डूरा मैटर, एराकोनॉइड मैटर और पाया मैटर या पिया मैटर। डूरा मैटर एकदम मतलब जस्ट हम लोग का जो मीन्स स्कल होता है, तो स्कल का जस्ट नीचे वाला उसका नाम है डूरा मैटर। उसके बाद जो होता है वो एराकोनॉइड मैटर होता है, उसके बाद होता है पाया मैटर या पिया मैटर। अब ये क्या करता है, जो स्कल होता है, स्कल में भी हम लोग हड्डी रहता है, ये सैजिकल सूचर से ऐसे करके जुड़ा हुआ रहता है, वो प्रोटेक्शन देता है। उसके नीचे मतलब पहले हो गया स्किन, स्किन के अंदर में हो गया हड्डी, हड्डी का अंदर में हो गया मेनिंजेस, मेनिंजेस का अंदर में एक वो फ्लूइड रहता है जिसको कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसके बाद ये जो हम लोग ब्रेन है, मतलब जो मेन थिंकिंग सबके लिए, वो हो गया मतलब सेरिब्रम। अब ये सेरिब्रम का 2 गो हेमिस्फीयर होता है, लेफ्ट और राइट। आपका जो अगर आप राइट हैंड को मूव करा रहे हैं तो आपको लेफ्ट पोर्शन मतलब लेफ्ट ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर उसके लिए मीन्स एक्टिव है, अगर आप लेफ्ट को कर रहे हैं तो राइट हेमिस्फीयर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये दोनों को जो मीन्स तालमेल जो रखता है, इसका नाम होता है हम लोग का कॉर्पस कैलोसम। ये दोनों एक दूसरे को क्या करता है, मीन्स इंटरेक्ट करता है, नहीं तो कोई भी मीन्स टोटल काम नहीं कर सकता कि एक साइड का काम हो एक साइड का काम हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो दोनों में ये मीन्स रिलेशंस मस्ट बी मीट। अब ये जो मीन्स ब्रेन है, इसका भी अगर हम लोग देखते हैं तो इसका भी 4 गो लोब रहता है। अब ये लोब, एक लोब का फ्रंटियर लोब, ऑक्सीपिटल लोब, ऐसे पैराइटल लोब, ऐसे लोब होता है, वो सब बाकी काम करता है। ओके, थैंक यू सर। और एक चीज, हाँ, हम लोग अगर हम लोग ब्रेन का मीन्स मेमोरी अगर बढ़ाना है तो एक चीज होता है, खान पान अच्छा होना चाहिए और हम लोग रेस्ट करना चाहिए। मिनिमम 6 से 8 घंटा नींद होना चाहिए। लेकिन आज का भाग दौड़ वाला जिंदगी में हम लोग का नींद नहीं होता। ब्रेन में ब्लड सप्लाई मस्ट बी नीड,
ब्रेन में ब्लड सप्लाई होता है तो ब्लड के थ्रू हम लोग का ऑक्सीजन और फूड जाता है जो ब्रेन को एनर्जेटिक करता है। हम लोग इंडिया में ये सुविधा नहीं है, लेकिन विदेश में जो स्टूडेंट लोग पढ़ता है उन लोगों को एक पावर नैप दिया जाता है, मतलब उन लोगों को सोने का एक टाइम दिया जाता है। वो लोग अब जब कोई सोता है तो वो ब्रेन एनर्जाइज हो जाता है, फिर पूरा रिलैक्स हो जाता है। जब रिलैक्स होता है इसीलिए हम लोग कंटिन्यू काम नहीं कर सकते हैं, हम लोग को सोना पड़ता है, नहीं तो हम लोग का ब्रेन वो थिंकिंग पावर नहीं रख सकता है। इसीलिए ब्रेन को एक्टिव करने के लिए और एक क्या है, कंसंट्रेशन पावर। अगर हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो हम लोग का कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। ओके, थैंक यू। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, आप लोग समझ में आ गया होगा तो मेमोरी कितना जरूरी है मैथ्स बनाने में। अब ये मेमोरी हम लोग स्कूल में बच्चे का कैसे डेवलप कर सकते हैं। स्कूल में सिलसिला जैसे बताया जो लेना जरूरी है, खान पान भी करना है, हम लोग घर जाकर तो नहीं देख सकते बच्चे क्या खा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टिफिन में क्या ला रहे हैं वो देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को मेमोरी विकास करने के लिए हम लोग बच्चे के वंदना योग कराते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, अपने यहाँ ध्यान करवाते हैं, इससे बहुत फायदा होता है बच्चों को। तो बच्चे का मेडिटेशन में अगर हम लोग उसको पढ़ाते हैं और मेडिटेशन किसी कराते हैं तो ये भी बच्चों का मेमोरी डेवलप करने में काफ़ी मदद करता है। कमजोर जो बच्चे होते हैं उन लोगों को दिमाग कम होते हैं, तेज होते हैं उसको दिमाग, उनके कारण क्या होता है तो मैं जल्दी समझ लेते हैं जो बच्चे मैथ को समझते हैं। जो जैसे एक टीचर के लिए बारे में पढ़ा तो मैथ पढ़ाने में टीचर उसको यही ध्यान रखना है, खास करके जो टीचर है अपने यहाँ उससे मिलकर बच्चे का ब्रेन का विकास सही से हो रहा है आपको वो ऐसे देखा गया है। जो याददाश्त पावर, मेमोरी पावर जो होता है वो महिला और गर्ल्स लोग को ज़्यादा होता है, मगर मैथ बनाने में साल में ये निकल के आया है। बॉयज पावर ऑफ डूइंग द मैथ इज ग्रेटर देन गर्ल्स और मेमोरी पावर गर्ल्स इज मोर देन बॉयज। बॉयज ही ज़्यादातर मैथ में ठीक होते हैं, ऐसा नहीं है करती है बाद में हम मैटर में आ रहे हैं। सेकेंड द लेटर इज ए, एक्यूरेसी मीन्स सटीक। ठीक है, जो मैथ बना रहे हैं वो मैथ में मिस्टेक होगी, मिस्टेक ना हो, एकदम करेक्ट ये जरूरी। अगर मैथ बनाया बच्चे अब सटीक नहीं हुआ तो उसको कोई मार्क्स देंगे नहीं। इसलिए मैथ करेक्ट बनाए वो देखना पड़ेगा कि मैथ वो जो प्रोसीड्योर है वो सही बच्चे बना रहे हैं या नहीं। क्या होता है बच्चे का कॉन्सेप्ट भी सही से नहीं रहा, जिसके कारण क्या होता है मैथ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं आंसर रख लेते हैं, आंसर तो दिया हुआ है उसको रख के आ गया, वो क्या करता है जैसे तैसे मिला दिया तो लाके आंसर को टेली बना दिया। ठीक है, आंसर टेली हो गया करेक्ट। अगर ऐसा नहीं, जब तक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक बच्चे एक्यूरेट मैथ बनाने। इसलिए जो मैथ टीचर हम लोग को क्या चाहिए, बच्चे जो है वो एक्यूरेट मैथ बनाए, उसके ऊपर ध्यान। Second, that is T for talent. Talent means creativity, talent. Yeah. प्रतिभा. दक्षता. Yeah. तो जैसे ये जो मैथ टीचर अगर बच्चे के अंदर वो टैलेंट तो आप ये टैलेंट कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं, प्रैक्टिस इज द वन ऑफ द मेथड
to develop their talent. प्रैक्टिस ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, जो मैथ का जो टैलेंट है उसके अंदर वो डेवलप। तो बच्चे को ध्यान ही नहीं देते हैं मैथ के क्लास, टैलेंट को कैसे डेवलप, कैसे बच्चे के अंदर टैलेंट ले जाइएगा, प्रैक्टिस करिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन बनाए, प्रोसीजर बताए, 4-5 मैथ दे देते हैं क्या करने के लिए, होमवर्क बना के एकदम सेम। जब तक इंस्ट्रूमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। Clear that at first clear the concept of this topic in front of students. I have one question, sir. Can you suggest me some measures how the student can bring the accuracy towards the maths? So, sir, give some more ideas that the students can learn accuracy in maths. How to increase the accuracy of the maths? At first clear the concept. Concept means suppose you are doing middle term factors. Okay, आप बच्चे को middle term factor बता रहे हैं, तो this is some middle term factors. ये बात समझिए, बच्चे को middle term factor बताना है, तो middle term बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पहले middle term क्या है वो बताते हैं। अगर पहले यही नहीं बताते व्हाट इज मीनिंग ऑफ फैक्टर, ये फैक्टर होता क्या है, एनीवन से व्हाट इज फैक्टर, फैक्टर होता क्या है, पहले ये तो जानना होगा। तोड़ देना, जिसको खंडे खंडे कर देना, तोड़ देना। Actual definition we can't say, but we know dividing the number. Yes. It is fully divisible. In a simple way, converting product form. सीधा सा बात है, गुणनखंड के रूप में लिखना है। That is suppose Multiplication form, no sir? multiplication. Yes. जैसे मान लीजिए here 1 greater than 20, 1 is 26. इसको क्या करेंगे, फैक्टर बताना है, तो बच्चों को पता है इसको तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर को 2 into 21. ये हो गया। अगर बच्चे पहले बोलेंगे सर 1 into 26 तो 1 इज अ कॉमन फैक्टर। 1 क्या है, कॉमन है, सब नंबर में तो 1 तो आएगा, क्योंकि 1 इज अ आइडेंटिटी, तो क्या है इसी को मल्टीप्लाई करेंगे उससे रिजल्ट आएगा। तो पहले ये करना पड़ेगा, बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है फैक्टर के बारे में वो क्लियर करना, राइट सर। तो जैसे ही बच्चे का फैक्टर मतलब समझ गया तो बच्चे समझ जाएगा उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे आना। सेकेंड है जो मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म फैक्टर किन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का निकलेगा या किस पॉलिनोमियल का निकलेगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकलेगा, ये बताना। बच्चे किसी को मैथ दे दिया, जैसे इस तरह का है x + 6 + 2x² + 1, इस तरह के सम, बच्चे इसको भी मिडिल टर्म करते थे। तो पहले बच्चे को ये क्लियर करना पड़ेगा जो मिडिल टर्म फैक्टर किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का निकलेगा, यानी किस पॉलिनोमियल का निकलेगा, ये तो क्लियर होना चाहिए, तभी तो बोला है। मैं आपने बता दिया जो मिडिल टर्म ब्रेक करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक कर देगा और फिर आएगा नहीं मैथ्स, अटक जाएगा वो नहीं निकलेगा। तो पहले ये बताना पड़ेगा मिडिल टर्म निकलता है केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसका निकलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का निकलेगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही निकलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल क्या है, जिसका डिग्री 2 होता है, यानी एक्सपोनेंट 2 होता है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 होता है, वो हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका तो निकलेगा ही नहीं, तो बच्चे समझ जाएंगे कि कब हमको खोलना है, ब्रेक करना है और ब्रेक करना नहीं। इसके बाद वाला स्टेप क्या करना है, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, ये बच्चे से पूछ लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, बच्चे बोलेंगे हाँ, ये तो है सर, यस सर, यस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन्स पॉलिनोमियल, इक्वल टू 0 मीन्स इक्वेशन। तो ये पॉलिनोमियल्स हैं, क्लियर हो गया, अच्छे जानिए। अब उनको बताइए कि आप कैसे ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, आइदर प्लस और माइनस। तो हमको कैसे पता चलेगा प्लस में करना है या माइनस में करना है? तो सबसे पहले ये बच्चे को बताइए जो इसमें जो टर्म दिया हुआ है, क्योंकि वन वेरिएबल से यहाँ ये 3 टर्म है, 1 2 और 3। जो लास्ट वाला टर्म है इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का जो साइन है उसको ध्यान में रखना होगा। अगर कांस्टेंट टर्म का साइन प्लस में है तो प्लस में ब्रेक करेंगे, अगर कांस्टेंट टर्म का साइन माइनस में है तो आप माइनस में ही क्या करना है। जो कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है? 6, ठीक है। तो 6 है, उसका साइन क्या है? प्लस। या साइन, सो वी हैव टू ब्रेक द 5 इन प्लस, प्लस में ही 5 को ब्रेक करना है, ठीक है। ये प्लस में ही ब्रेक होगा, ये समझ में बच्चे समझ जाएंगे, साइंस को देखकर समझ गए, प्लस में ब्रेक करना। नेक्स्ट स्टेप, बच्चे को ये भी बताना है जो जब हम ब्रेक करेंगे तो और एक बात ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म प्रोडक्ट, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, सो 1 into 6 is 6, है ना? 1 into 6 is 6। तो हमको भी दो संख्या ऐसे ही ब्रेक करना है जो दोनों को मल्टीप्लाई करके और सर मिडिल टर्म ये उसको ऐड करके भी वो आना चाहिए। ये तो दैट इज तो क्लियर है, प्लस है तो आप प्लस में करना है, माइनस तो सोचना ही नहीं है। बच्चे तो ये ध्यान में लगाए, तो सर तो बता ही दिए हैं जो लास्ट वाला साइन है प्लस, बच्चे वैसे करके याद रखते हैं। तो सर क्या बताएं प्रोसीड्यूर, ठीक है। तो हम तो क्लियर कर दिए नहीं, प्लस में आपको तोड़ना है, प्लस है। अब फैक्टर कैसे निकालेंगे? दूसरा क्वेश्चन है, उसको कैसे मालूम रहेगा जो 3 + 2 में तोड़ना है या 6 + 1 में या 5 + 1 में तोड़ना है। तो इस समय बच्चे को बताना है जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब वहाँ पर ट्राई कीजिए 2 डिजिट को लाने का, जैसे यह 6 है तो हम 6 को ब्रेक किए, तो हम अगर यहाँ पर 2 + 3 तो ये क्लियर भी हो जाएगा बच्चे का, दैट इज क्लियर। तो उसको 5 में ब्रेक। नेक्स्ट स्टेप, x स्क्वायर + 3x + 3x। आप बच्चे को बताइए जो here how many terms are studying? Here 3 terms and convert them into 4 terms. अब क्या करेंगे? दो टर्म से हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। कॉमन निकालने के समय भी एक ध्यान रखेंगे, वो दोनों भी क्या होता है? वो आएगा ही। जैसे आप यहाँ से x कॉमन लेंगे, x + यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, x + what are same? x + 2 here and x + 2 here. So taking the common x + 2. अब ये दोनों टर्म से पहले हम क्या किए? 4 टर्म से 2 को में एक कॉमन फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया, ये दोनों कॉमन आया उसको फिर कॉमन ले लिया, तो क्या एक टेकिंग द कॉमन x + 2, सो x + क्लियर। तो ये जो एक्यूरेसी है, इस तरह से अगर हम बच्चे को बताते हैं तो बच्चे मैथ को एक्यूरेट करेंगे। अगर बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, बच्चे क्या करेंगे? किसी चीटिंग करेंगे। आप बोर्ड में बना दिए, बोर्ड से बच्चे उतार लिए, होमवर्क दे दिए, आप बच्चे क्या किए? अपने से होमवर्क नहीं बनाया, जो बच्चे तेज है बना के लाए, उसका कॉपी से कॉपी कर लिया, तो होमवर्क नहीं बनाए तो हमारिएगा। तो ये ध्यान रखता है बच्चे तो होमवर्क कैसे करना है। अब ये इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव द सेपरेट होमवर्क टू, ये तो पॉसिबल नहीं है। हर अलग अलग बच्चे को हम अलग अलग
हाँ, मैथ्स टीचर क्या है, कोशिश करना चाहिए जो ज़्यादातर सम्स जो है, जो डिफिकल्ट सम है, उसको मैथ्स क्लास में ही करवा दें, ताकि बच्चे आप होमवर्क जो दे वो सिमिलर मैथ दे, जो आप क्लास में करवाए हैं उसी टाइप का सिमिलर मैथ दे। बिकॉज मैथ इज ए प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट। मैथ क्या है? प्रैक्टिस बेस्ड है, लर्निंग बेस्ड नहीं है। जो लर्न कर लिए बच्चे बना लिए, ये प्रैक्टिस है। बच्चे क्वेश्चन को देखेंगे, सर ऐसे बनाए हैं, सर इसको ऐसे बनाए, फिर आप अलग अलग मैथ दीजिए ना, ऐसे अलग अलग मैथ बनाते टैलेंट। टैलेंट का बीमा कैसे कर सकते हैं? जैसे इसको हम प्रैक्टिस कराते हैं, उसके अंदर हार्ड वर्क क्या है? मैथ्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बच्चों को भी बताना पड़ेगा। जो अगर आपको मैथ्स सीखना है तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत कुछ नहीं होगा। तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। सर हार्डवर्क क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा आपको। जो हम सम देंगे, जो हम मैथ्स आपको दे रहे हैं या बोर्ड में जो करवा रहे हैं, इसको आप जरूर कॉपी में नोट डाउन कीजिए, इसको घर पे जाइए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना हार्ड वर्क कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस आप कीजिएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम बताते हैं, बच्चे को अक्सर हम क्लास में भी बताते हैं। किंग ऑफ ब्रूस ली, एवरीवन नो ब्रूस ली, किंग ऑफ कुंग फू क्या है? कुंग फू का किंग। एक बार क्या हुआ, डुप्लीकेशन अमेरिका में फाइट होने वाला, फाइट होता है तो अमेरिका बहुत बड़ा बड़ा फाइटर लोग आता है, उसमें उनको चैंपियन अपना दूसरा शहर है। तो उसका जो ट्रेनर है वो आपको किसी को बताया कि भैया तुम प्रैक्टिस तो कर लो अच्छा से, बड़ा बड़ा ट्रेनर के साथ हमारा फाइट होने वाला है। तो वो ट्रेनर का एक पूछा, जो अब जो सबसे अच्छा ट्रेनर को माने अच्छा फाइट करने वाला कौन है? नाम बताया जो अमुक है, बहुत अच्छा अमुक है, वो बहुत अच्छा फाइट करेगा। उसको अगर जिला उससे फाइट करने के बाद तुम जीत जाओगे तो भी जीतेगा। तो पूछा जो अपना किक है, वो एक किक को कितना बार प्रैक्टिस करता है? तो बोला एक किक को कितना बार प्रैक्टिस करता है? बोला वो सर हमको बता दीजिए वो कितना प्रैक्टिस करता है। तो बोला कि अलग अलग किक को प्रैक्टिस करता है, एक किक को ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करता है। कोई चिंता नहीं है, क्या फाइट लड़ा, जीत गया। तो दूसरे जीत गया, उसको उसका ट्रेनर उससे पूछ रहा है, तो सब ट्रेनर वो कितना घंटा प्रैक्टिस करता है ये पूछा, तुम पूछा कितना एक ही फाइट को कितना बार प्रैक्टिस किया? तो देखिए कौन कितना बार प्रैक्टिस किया वो मायने नहीं रखता है, एक ही किक को, एक ही डिजाइन को कितना बार प्रैक्टिस किया। जितना बार वो प्रैक्टिस ज़्यादा प्रैक्टिस किया होगा उसका वो फाइट उतना एक्टिवेट होगा। वो फाइट जब हमको लगेगा तो ये होगा सही में मेरे अंदर पंचिंग होगा। यानी इससे ये पता चलता है जो मैथ को कितना बार आप प्रैक्टिस किए हैं। अगर एक मैथ को 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करते हैं तो मैथ इजी हो जाएगा, आपका उसमें पानी हो जाएगा, आपको जल्दी वो मैथ आएगा, वो आराम से। इस तरह से क्या कर सकते हैं, हार्डवर्क के बारे में बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप हार्डवर्क कीजिए। जितना आप हार्डवर्क कीजिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, मैथ आपके लिए या 6 मैथ टीचर आप चलिए पूरे सेशन हिंदी में दोसा में विनोद सर सो आई वांट टू तो विधि में तो अकाउंट का हार्डवर्क So hard work needs practice. So more we practice, more we learn and more we earn. So if we will tell students to you are doing any
कोशिश strategy or plan. Okay, so if I am teaching a particular chapter, if we will talk about the lines and angles, so I will tell them and I will try to connect this with daily life. So I will say that if a clock having a 9 a.m. or is it 3 a.m. So I will tell them that this shows a 90 degree and so on. So I will connect these things with their daily life. This will be the steps. टेकिंग द चैप्टर लाइन्स एंड एंगल, मैंने जैसे बताया वो लाइन्स एंड एंगल, इसमें हम लोग और एक स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। अगर लाइन्स एंड एंगल बताते हैं, बच्चे से पूछते हैं उस प्ले क्राम्बो, आप बच्चे को पूछे आप क्राम्बो खेलते हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे यस, क्या करते हैं हम लोग क्राम्बो, कौन अच्छा प्लेयर है क्राम्बो, है ना। हम बच्चे को बोला जाए क्राम्बो आप खेलते हैं, क्या करते हैं क्राम्बो में अगर इस बोटी को हमको मारना है, अगर इसको इस जगह पे लेके जाना है तो हम एंगल सेट करते हैं, ठीक है। इस एंगल में यहाँ मारेंगे तो ये जाके इसको टकराएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा, है ना। बच्चे जैसे ही ट्रांसपोर्ट का नाम सुनेगा बच्चे को है ना, we go through the local example. Yeah, always yes, we have to connect this with our daily life. Anytime give the example of daily life. आप कोशिश कीजिए जो डेली लाइफ का जो एग्जाम्पल है वही नहीं यार, तो ये कोशिश कीजिए जो डेली लाइफ का जो है वो एग्जाम्पल हम बच्चों को बताएं, तो बच्चे क्या करेंगे इसको यूज करेंगे। तो ग्रामर के बारे में अगर बच्चों को बताएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, तो एक्साइटेड होंगे, एंगल्स बताएंगे, टाइप ऑफ एंगल बताएंगे, तो बच्चे उसको ध्यान से सुनेंगे भी। नेक्स्ट S means sincerity or science of learning. Science of learning. This is according to me. Learn another Science of learning. That's what science of learning. प्रयोग करना और सीखना, बच्चों को ही बताइए जो मैथ में जब तक आप प्रयोग नहीं करते, दैट मींस जब तक आप गलत मैथ नहीं पढ़ाते तब तक आप सही मैथ सीख ही नहीं पाएंगे। सही मैथ आपको सीखना है तो आपको गलत मैथ बनाना पड़ेगा। आप गलत मैथ जैसे ही बनाइएगा, आपका टीचर क्या करेगा, फाइंड आउट द मिस्टेक फाइंड करेंगे, आपको बताएंगे वहाँ कैसे आप करेंगे। अगर आप मैथ ही नहीं बनाएंगे, आप किसी को मैथ सीखिंग करेंगे, किसी से देख के लिए मैथ सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मैथ बनाना पड़ेगा, चाहे गलत बने, एक बार दो बार गलत बनेगा, हर टाइम करेक्ट मैथ्स बना लेंगे। और जैसे ही हम एक मैथ बनाने सीख गए, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब मैथ सीखने लगेंगे। जैसे कहा जाता है कि आपको तैरने सीखना है, स्विमिंग है ना, तो अगर हम तालाब के किनारे खड़ा होकर देखेंगे कौन स्विमिंग कर रहा है, कौन तैर रहा है, कैसे तैर रहा है देखेंगे, तभी सीख लेंगे। ठीक है, कैसे करना है तभी हम लोग को स्कूल में बताया जाता था, एक एग्जाम्पल दिया जाता था, जो हम लोग सिलेबस में भी एक था बाघिन, फैमिली क्लोज बाघिन, इसमें दिखाया जाता था जो लाइक कैसे अपने बच्चे को तैरने सिखाता है। ये अलग मैटर है जो एनिमल्स जो होता है उसका दिमाग जो होता है वो भारी नहीं होता है, हम लोग के तुलना में हल्का होता है, उन लोगों को इसलिए ज़्यादा तैरने सीखने की जरूरत नहीं पड़ता। मगर फिर भी एक्सपर्ट कैसे बनाता है, पानी के अंदर कैसे तैर सकते हैं, वो जो शेरनी है वो क्या कर रहा है, बच्चे को मुंह से पकड़ रहा है, पानी में फेंक दे रहा है,
फिर बच्चे जैसे तैसे वो सर्वाइव करके वो जैसे तैसे करते हुए फिर उसको मुंह में पकड़ रहा है, फिर उसको फिर वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, 1 दिन 2 दिन तीसरा दिन के बाद सारे बच्चे अपने ही छलांग मारते हैं और अपने ही तैरते तैरते बाहर आ जाते हैं। ये also this process science of learning। आप बच्चे को बताइए जब तक आप तैरना सीखना है, इसी तरह से पानी में कूदना पड़ेगा, इसी तरह से मैथ सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा। मैथ के लिए आपको गलत मैथ बनाना पड़ेगा। आप मैथ बनाइए, जैसे जैसे मैथ गलत होगा धीरे धीरे कनेक्शन होते जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आप मैथ सीख सकते। आई थिंक मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है आप लोग को बताएं, अच्छा बता पाए कोई पता नहीं। तो एवरीवन क्लियर व्हाट इज मैथ्स? यस सर, क्लियर हो गया जो मैथ्स है। सो नेक्स्ट व्हाट इज फियर ऑफ मैथ्स? फियर ऑफ ये आपको हम बताएंगे जो फियर ऑफ मैथ्स क्या है। Some students see the math and get angry. Sometimes it's going to feel bored also. Especially when math part. उसमें कोई लिविंग सीख नहीं है, Geometrical power. Accidentally geometry. ठीक है, आप लोगों को बता देते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे अदर सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं इसका सपोर्ट करते हैं मैथ इज सो बोरिंग। अगर मैथ बोरिंग नहीं है, अगर आप मैथ्स को समझ लीजिएगा तो आपको बहुत एंजॉय आएगा। अब मैथ्स इतना बोरिंग है, आपको बता देते हैं क्लास टेस्ट हो रहा है। क्लास टेस्ट में बच्चे जो एडमिशन लेते हैं, जो क्लास टेस्ट उसमें सिंगल वर्ड आता है, एक बात नहीं, तो वन वर्ड, तो उसमें एक सिंगल वर्ड है जो विज्ञान जानता है, ठीक है, और जो गणित जानता है। तो एक बच्चे ने क्या लिखा है, जो विज्ञान जानता है पागल, तो गणित जानता है उसमें लिखिए महा पागल। ये इससे आपको पता चलता होगा जो बच्चे के अंदर मतलब जो विज्ञान जानता है तो पागल है, जो गणित जानता है वो। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर। तो ये जो टॉपिक है मेरा नेक्स्ट ये हो मैथ्स। तो ये ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो मैथ्स में करते हैं, ऐसा सभी में भी आया है, पाया जाता है। या आप लोग ट्रीट किए होंगे बच्चे, 4 में से 3 बच्चे जो है मैथ से डरते हैं, लेकिन बच्चे होते हैं जो मैथ्स समझते हैं और मैथ बनाते हैं। तो ये फियर ऑफ मैथ्स क्या है, रीजन क्या है इसका? रीजन जो बच्चे के अंदर जो मैथ में जो डर पैदा हो सकता है, डर पैदा होने का कारण कॉन्सेप्ट क्लियर कोशिश करेंगे जो यही चीज बताने का जो बच्चे के अंदर मैथ में डर नहीं है। तो माय फर्स्ट पॉइंट इज hearing from past. What's that? Hearing from past. First point is hearing from past. Yes, from our seniors. मेरा पहला पॉइंट जो है वो है hearing from past. बच्चे जो है जैसे ही क्लास में जाते हैं, मैंने 1 में एडमिशन लेते हैं या केजी में होता है, नर्सरी में होता है, तो बच्चे के अंदर ये बात पहले से ही पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, सब करते हैं। मैथ को अच्छे से बनाओ, मैथ सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट है। इस तरह का बच्चे के अंदर जब कोई भी बात हम लोग सुनते आते हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग के दिमाग में बैठ जाता है। अब यही बात बच्चे के अंदर डर का कारण
तो ये पहले जो पॉइंट्स है जो हियरिंग फ्रॉम पास्ट, तो बच्चे को बचपन से ही जो पेरेंट्स है जो टीचर्स बोलेंगे ये बताइए जो मैथ्स में डरने की बात नहीं, मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है। सही बात। मैथ जो है सारा से बाकी सब्जेक्ट में आपको रखना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगा, मगर मैथ में ये सब डर ही नहीं है। ठीक है, मैथ में क्या है स्टेप बाय स्टेप नंबर का, 2 स्टेप भी आप करेक्ट करते हैं तो नंबर देगा, तो नहीं देगा। आप एक वर्ड गलत लिख दिए, मीनिंग चेंज हो गया, मैथ काट दिया, पूरा आंसर गलत। तो बच्चे के अंदर ये जो पहले से जो चला आ रहा है तो मैथ जो कर सकते ये चीज को निकाला। अगर ये चीज हम निकाल पाते हैं बच्चे के अंदर से जो मैथ इज नॉट ए टफ सब्जेक्ट, मैथ इज इजी सब्जेक्ट। मैथ क्या है? इजी सब्जेक्ट। और ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप इसको लिखिए ना। बहुत सारे एग्जांपल बताइए तो क्या करते हैं आप। अगर एक मान लीजिए आपके एक भैया को 2 चॉकलेट देते हैं और खुश होते हैं, आप चाहते भैया रोज मुझे चॉकलेट, तो क्या करते हैं एडिंग होते जा रहा है, तो किसी को क्या करते हैं बाद में एड करते हैं, ऐड शेप्स के बारे में बता सकते हैं। हम एड करते हैं अपना लाइफ को खुशी को हम जैसे एड करते हैं, उसको मल्टीप्लाई चाहते हैं, एक भैया देते तो दूसरे भैया भी हमको एक और चॉकलेट मेरे पास। तो इसी तरह से अब जो खराब एक्सपीरियंस है उसको हम लोग करते जाते हैं। तो ये भी हम बता सकते हैं बच्चों को कैसे करते हैं। तो ये बच्चे को बताते हैं तो ये कम से कम वो दूर हो जाएगा बच्चे के अंदर से ये जो मैथ के प्रति उसका ये नेक्स्ट पॉइंट इज पुअर बेस। पुअर बेस खास करके और बेस जो होता है खास करके अपर सेक्शन स्टूडेंट के लिए है जो अब 6 अगर बच्चे जब शुरू से ही उसका बेस कमजोर होगा तो बच्चे जो होते हैं वो मतलब जैसे 1 में बच्चे का मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर है, नंबर का कॉन्सेप्ट, जैसे एक नंबर बच्चे को सिर्फ व्हाट इज नंबर, ये नंबर क्या होता है, व्हाट इज नंबर और क्या होता है। बहुत सारा क्वेश्चन अगर हम बच्चों को बताते हैं नंबर इज ए सिंबल ऑफ काउंटिंग, सिंबल ऑफ मैथ नंबर कितनी है तो 1 2 3। अरे बाबा सोचिए ना जब पहले के जो रामायण महाभारत आप लोग देखे हैं ये बहुत सारा स्टोरी देखे होंगे, सीरियल देखे होंगे आप, नंबर सबका अलग अलग लिखते हैं। अरे सिंबल अलग अलग होते हैं, हिंदी में हम लोग 1 ऐसे लिखते हैं, हम लोग रोमन में हम लोग, तो हर देश अपना अपना सिंबल है और हर देश का सिंबल अलग अलग हो जाएगा तो दूसरे एक देश से दूसरे देश का लेन देन कैसे होगा भाई। तो इसके लिए क्या किया गया, एक ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया और एक ही सिंबल को इंटरनेशनल में बदल दिया गया। अब ये ठीक कर दिया गया कि यही सिंबल को सब देश में चलाया जाएगा। तो बच्चे के अंदर ये चीज क्लियर हो जाएगा जो नंबर होता क्या, तो आप समझ गए नंबर कैसे। अब काउंटिंग नंबर बता दिया तो बच्चे समझ गया जो 1 2 इसे लिखना है तो गिनना है और इससे नंबर 1 ऐसे होता है, एक सिंबल बनाया गया है तो इस सिंबल का नंबर के तौर पे। फिर आप नंबर्स के जैसे एडिंग बताते हैं, सब्ट्रैक्शन बताते हैं, मल्टीप्लिकेशन बताते हैं, डिवीजन बताते हैं, तो धीरे धीरे इस तरह का आपको एक स्टोरी के साथ खास करके जूनियर क्लासेस होते हैं उसमें आपको करना है तो बच्चे का मैथ्स को पता चल रहा है। अगर बेस नीचे से ही ऊपर धीरे धीरे बच्चे जैसे ग्रो करते हैं उसका सिलेबस बड़ा होते जाता है और मैथ्स की क्लास तो बच्चे में टाइम बच्चे को देना नहीं होगा, बच्चा मैथ्स में टाइम देना, बच्चा अगर इंटरेस्ट आ गया तो वो भी अपना करके आएगा। ठीक है सर इसके एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि अगर छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे
क्वेश्चन है तो उसको अगर हम पहले 1 to 10 सिखाते हैं, उसके बाद 100 तक काउंटिंग ले जाते हैं, फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे बैकवर्ड काउंटिंग सीख लें, क्योंकि विदाउट बैकवर्ड काउंटिंग सीखे अगर बच्चा को हम बिफोर नंबर बनाने के लिए बोलते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ, वही चीज़ है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्लास में ऐसे करके छोट से लाइन दे दीजिए और 1 दीजिए, चलो तुम 1 पे जंप करो, ऐसे जंप करके 1 2 पे जंप करो, जंपिंग 1 जंपिंग 2 जंपिंग 3। अगर इस तरह से अगर बच्चे जंप करेंगे 1 तो समझ जाएगा 1 ऐसे लगाना उसमें जंप करना है। कोई भी बच्चे के अंदर इस तरह से पूरा बेस को क्लियर कर सकते हैं। अगर कोर बेस है, अभी हमें वीडियो दिखाएंगे, जो कोर बेस वाले लोग जिस दिन एग्जाम रहता है मैथ्स, उसके पहले 9th की करते हैं। कोर बेस वाले जो बच्चे होते हैं ना, जिस दिन एग्जाम रहते हैं पहले तो पढ़ेंगे नहीं, जब बच्चे पढ़ना है, जब क्लास में है तो बच्चे ऐसे नहीं करेंगे, सही से करेंगे नहीं। एग्जाम रहेगा उसका पहले दिन जो होता है रात के